Good morning and welcome to you all to the Felicitation Ceremony 2011-12. Today, we all have gathered here to share and to cherish the joy and wonders created by the brilliance of our school. But before we start, let us seek the blessings of Ma Saraswati, Ma Bharati and Sant Shiromani Paramhans, Sant Hirdaram Sahib Ji. For the pious purpose, I would most humbly request his beloved disciple, Reverend Sid Bhauji, all management members and all the heads of the institution to light the lamp and pay floral tribute in the lotus feet. ईश्वर द्वारा पाया गया आशीर्वाद शक्ति होता है। व्यक्ति के लिए अपनी आस्था दृढ़ करो, उज्जवल भविष्य तुम्हारे सामने है। Here's a prayer before you. ज्योति जगाई, जीवन में संस्कार दिए, जीने की रीति सिखाई। ज्ञान मिला, नई दिशा मिली, जग में कर पाए नाम, ऋणी रहेगा जीवन हरदम। मेरे गुरुवर आपको प्रणाम, मेरे गुरुवर आपको प्रणाम। Before we start with the program, we would like to honor the dignitaries on the dais to accord with the floral welcome. For this, I request Mr. Manohar Vaswani, Management in Charge, Navneet, to offer floral welcome to Reverend Sid Bhauji. Now I would request Principal NHLPS, Mr. V.S. Rai, to kindly welcome Mahesh Dayaramani sir, Secretary Jeev Seva Sansthan. A huge round of applause, girls. Now I request Ms. Rita Gurbani, Vice Principal, NHLPS, to offer floral welcome to L.C. Chanyani sir, Head of Seva Sadan Eye Hospital and Management in Charge. Further in the order, I would request Ms. Amrita Motwani, HM Navneet, to kindly accord floral welcome to Manohar Vaswani sir, Management in Charge, Navneet. I would request Ms. Abhilasha Parashar to offer floral welcome to Mr. V.S. Rai, Principal, Navneet. Give her a huge round of applause, girls. Don't be a miser. Dil khol ke taali bajaiye. Aren't you all happy? Now I request Ms. Mrinal Deshpande to offer floral welcome to Ms. Rita Gurbani, Vice Principal, NHLPS. A big clap. Further in the order, I would request Prachi Madnani, PRT Navneet, to please welcome Ms. Amrita Motwani, Headmistress, Navneet. Girls, they all have been working hard for you all. So give a huge round of applause once again. The objective of this program is to honor these students who brought laurels to the school. For this, we appreciate the commitment, loyalty of the students and the entire staff who serve this institution in different capacities, focusing the standard of excellence. And I get immense pleasure to say, yes, we are proud of you, Navnetites. Yes, we are proud of you, Navnetites.
Dear students, the school in which you are studying has been set up with specific mission, that is, to make you a worthy global citizen who is academically very strong and also to produce women of caliber. Now, I would request Captain of the ship, our Principal Sir, Mr. V.S. Rai, to set those objectives before us. Kindly welcome Principal Sir with a huge round of applause. Good morning, everybody. Thank you. Reverend Siddhbhau ji, Janayani ji, Mahesh ji, Manohar Vaswani ji, Vice Principal Madam, HM Madam, learned teachers, and my dear students. Today we are here to honor all those girls of class 10th and 12th who have achieved very good marks in the board examination. It is our tradition to honor the students as well as the parents. It is a continuous hard work of teachers and the students, and especially the motivation of management members, and especially Reverend Siddhbhau ji. He is the driving force behind us, who is continuously motivating the students and the teacher to achieve such targets. Last year we declared that in the academic field we will show our excellence, and I am very proudly can say that the present batch of the class 10th, last year's batch of the class 10th and 12th, they have achieved it. All the three, please give them the big round of applause for these girls. Many girls are there, of 10th class are there and 10 CGPA. If you compare this with the number of students present in the class 10th and the number of students who got 9 and above CGPA, then you will find that Navneet has achieved a very good result as compared to the other schools. And especially in class 12th, in the merit list of the Bhopal city of CBSE school, 4 girls are there. So it is a great achievement of these girls as well as our school. We are committed to have the all-round development of the girls or the students, not only in Navneet as well as in the Mithi school also. And both the schools are gradually coming forward to fulfill all the demands which are required for the development of the students. I congratulate these girls, as well as at the same time I would appeal and request the present batch of the 10th and 12th to break this target. For breaking this target, of course, a hard work is required. Continuous, slow and steady wins the race. And certainly you can do it. So I further appeal and request the students of present 10th and 12th as well as 9th. 9th is also important because on the basis of this, the result of the 10th class is based. So please, now our target for the 12th class is 10 out of 10. It means in the merit list of Bhopal, 10 girls from Navneet or from the Mithi Govind Ram should be there. Thank you very much. All the best. Mr. Ghanshyam Bhulchandani, Secretary, Shahid Hemu Kalani Educational Society is amongst us. We welcome you, sir, and I request our Principal, sir, Mr. V.S. Rai, to offer floral welcome to him. Opportunities for us all. Nothing to lose, everything to win. These are the ideals being laid by Mr. Ghanshyam Bhulchandani.
If you can dream it, you can do it. These words are always being kept by him. He is none other than Mr. Ghanshyam Bulchandani, Secretary, Shaheed Hemu Kalani Educational Society. Heights of glories to scale, mountains to reach out to, glory and fame to attain, there is nothing we cannot do. Yes, dear friends, with the blessing of Santji, motivation of Reverend Sid Bhauji, and the true guidance of Manohar Bhaiya, we all are here to witness this moment of happiness, pride and success. Now I would request Mr. Manohar Vaswani, Management in Charge, NHLPS, to enlighten us with his thoughts. सबसे पहले मैं परम पूज्य संत शिरोमणि हृदयराम साहब जी, हमारे मोटिवेटर, हमारे गाइड श्रद्धेय सिद्ध भाव जी के चरणों में नमन करता हूं। मंच पर आसीन श्री महेश दयारामानी जी, सेक्रेटरी जीव सेवा संस्थान, श्री घनश्याम गुलचंदानी जी, सेक्रेटरी शहीद हेमू कालानी एजुकेशनल सोसाइटी, श्री जानियानी जी, डायरेक्टर सेवा सदन आई हॉस्पिटल, प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल, हेड मिस्ट्रेस, ऑनरेबल टीचर्स, and above all, my dearest students and their parents. आज हम उन सब विद्यार्थियों का सम्मान करने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं जिन्होंने सम्मान के योग्य अपनी योग्यता सिद्ध कर दी है। ये सम्मान उनका, उनके पेरेंट्स का, उनके टीचर्स का साथ साथ होने जा रहा है और हमें गर्व है कि इन बच्चों ने हमारे स्कूल को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की है। 12th की जहां तक रिजल्ट की बात करें, 4 बच्चे हमारे भोपाल की मेरिट लिस्ट में हैं, जो अपने आप में एक इतिहास है। मैं उन सबको अपने हृदय से बधाई देता हूं। उन लोगों ने लगातार, जो अभी कह रहे हैं कि सीसीए पैटर्न चल रहा है, लेकिन इन लोगों ने पहले से ही सीसीए पैटर्न लागू कर दिया अपने जीवन में और पूरे साल भर जो लगातार ये पढ़ाई करते गए, उसका ये रिजल्ट है कि आज हम खुद को और इन बच्चों को सम्मानित करते हुए हम खुद भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और ये उदाहरण हम सबके लिए है, बाकी सब बच्चों के लिए है कि आगे बढ़ के वो भी कुछ कर सकते हैं। आप इनको देख रहे हैं कि ये भी आपकी ही तरह है। अगर आप भी इसकी तरह टारगेट फिक्स करके मेहनत करें तो कुछ न कुछ अचीव कर सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये वर्ष, जैसा कि हमारे लिए टारगेट रखा गया है कि जो भोपाल की मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें 10 के 10 बच्चे हमारे नवनीत के होंगे। तो समय केवल अगर जुलाई से लेंगे तो 7 महीने का समय बचा है। 7 महीने कम भी नहीं है। अगर 7 महीने कंटिन्यूअस कंप्रिहेंसिव रेगुलर अगर स्टडी होती है तो कोई बात नहीं है कि आप ये अचीव नहीं कर सकें जैसे इन बच्चों ने अचीव किया है। इसके लिए एक लक्ष्य तय करना बहुत आवश्यक है। लक्ष्य के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो आपका लक्ष्य तो क्लियर है, आपके सामने है, बस उसके लिए एक टाइम टेबल फ्रेम करते हुए किस तरीके से अचीव करना है। भाऊजी हमें समय समय पर गाइड करते रहते हैं और उनके गाइडेंस का ही ये परिणाम है कि हम आज अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इसके लिए मैं उन सबको बधाई दूंगा, टीचर्स को, न केवल पीजीटीज को, बल्कि जो पीआरटीज हैं उन लोगों ने भी बहुत मेहनत करके उनको आगे बढ़ाया और वो जब टीजीटीज के पास आए, टीजीटीज ने भी अपनी मेहनत की और अंत में पीजीटीज ने परिणाम दिखाया। तो मैं केवल पीजीटीज का ही इसमें सहयोग नहीं मानता हूं, मैं पीआरटी से लेकर टीजीटी और पीजीटी और पूरे स्कूल और मैनेजमेंट को भी इसका सहभागी मानता हूं और सबसे सहभागी मानता हूं उन स्टूडेंट्स को जिन लोगों ने बातें सुनकर उन पर अमल करने की कोशिश की और आगे बढ़ते गए। मैं ये बता दूं कि न केवल एकेडमिक्स में लास्ट ईयर हमने टारगेट रखा था कि ये साल हमारा नवनिध ईयर्स के रूप में मनाया जाएगा और बच्चों ने सिद्ध कर दिया कि हां हम ये कर सकते हैं और उन लोगों ने करके दिखाया। मैं उन सबको बधाई देता हूं। और न केवल स्पोर्ट्स इसमें एकेडमिक्स में, बल्कि जहां जहां भी हमारे बच्चे गए हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे कल्चरल हो, चाहे साइंस एग्जीबिशन हो, हर जगह से
कहीं फर्स्ट प्राइज, कहीं सेकंड प्राइज, कहीं फर्स्ट प्राइज, कहीं सेकंड प्राइज, यानी आउट ऑफ 56 स्कूल्स, और नेशनल गेम्स में भी उन लोगों ने अपना परचम लहराया है। वास्तव में इनमें प्रतिभा है, इतनी प्रतिभा है, प्रतिभा को निखारने का अवसर भी उनको यहां पर मिलता है और उन्होंने निखार के बता भी दिया है। मैं अंत में एक छोटी सी आपको बात बताऊंगा कि कुछ साल पहले भाऊजी ने हमको कन्याकुमारी भेजा था, हमारा वहां कैंप था। कुल शायद हम 32-33 लोग थे और एक दिन हम वहां पे आसपास के जगहों पर घूमने के लिए गए थे, तो हमें बताया गया कि पास में एक पहाड़ है, उसका नाम था मरुत्तुमलाई। उस पहाड़ को चढ़ने के बाद हमको अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के तीनों का संगम एक स्थान पर होता है, वो आपको ऊपर से दिखेगा, और इंदिरा पॉइंट जो है वो भी आपको वहां से दिखाई देगी। हम बस से वहां सवेरे सवेरे पहुंचे थे। उसकी ऊंचाई को देख के कई तो वहीं बैठ गए बस में, बोला हमारे बस का नहीं है। फिर आगे बढ़े, कुछ पहाड़ के नीचे आके रुक गए। लेकिन हमारे साथ में एक प्रिंसिपल थी, मैडम सक्सेना, उसकी उम्र शायद उस समय 65 ईयर्स थी। उसकी हिम्मत थी, वो आगे बढ़ी, बोला मैं चढ़ूंगी। सबको आश्चर्य हुआ कि ये कैसे चढ़ पाएगी। हाथ दे के चढ़ते चढ़ते कम से कम 1.5 घंटे की चढ़ाई थी, बहुत कठिन चढ़ाई थी। सीढ़ियों का तो सवाल ही नहीं, कहीं हाथ पकड़ के कहीं कुछ करते हुए करते 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 आखिर हम ऊपर चढ़ गए। हमें बहुत आश्चर्य हुआ कि ये माताजी हमारे साथ कैसे चढ़ के आई। तो हमने पूछा, माँ जी आपको बहुत कष्ट हुआ होगा, बहुत तकलीफ हुई होगी, कैसे आप यहां तक चढ़ के आई? तो उन्होंने 2 लाइनें बोली थी। उन्होंने कहा कि ये चढ़ाई पांव क्या चढ़ते इरादों ने चढ़ी है। ये चढ़ाई पांव क्या चढ़ते इरादों ने चढ़ी है। जिंदगी ने कर लिया स्वीकार, अब तो पथ यही है। मैंने नीचे से ही ठान लिया था कि मैं ये चढ़ के बताऊंगी, और तीनों महासागरों का संगम जहां पे होता है मैं उसको भी देखना चाहती हूं, और वो कर लिया। तो जब वो कर सकती हैं, चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, लक्ष्य अगर हमने रखा है, इरादा अगर हमारा मजबूत है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और ये आपने सिद्ध कर दिया है। मैं सभी को आह्वान करता हूं, हमारे नवनिर्धारित को, कि वे और आगे बढ़ें और आगे बढ़ें, और न केवल अपना, अपने परिवार का, समाज का, हमारे स्कूल्स, मैनेजमेंट, सबका नाम रोशन करते हुए बता दें कि नवनीत इज द बेस्ट। थैंक यू। Thank you, Bhaiya, for your inspirational words. Whether you face the sun or not, whether or not you are bold, your fate in the end is yours to choose, yours to shape and mold. Now I request Mr. L.C. Jamyani sir, in charge VPS, trustee JSS and head of Sivasadan Eye Hospital to enlighten us. परमहंस संत हृदयराम साहब जी एवं परम श्रद्धेय सिद्धभाव जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। मंच पर विराजमान मेरे साथी महेश जी, घनश्याम जी, मनोहर जी, प्रिंसिपल राय साहब, अमृता मैडम, रीटा जी, समस्त रिस्पेक्टेड टीचर्स के चरणों में मेरा नमन। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सब सम्मान के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। आज का जश्न आपकी खुशी में मनाया जा रहा है, क्योंकि आपने पूरे भोपाल में नंबर 1 आए हैं आप लोग। मेरी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और ये कितना खुशी का अवसर है कि नवनीत ने कितने शॉर्ट टाइम में ये सिद्ध कर दिया कि ये भोपाल का नंबर 1 स्कूल है और हमारे बच्चे नंबर 1 हैं। बहुत खुशी है, आपने परम श्रद्धेय सिद्धभाव जी के सपनों को साकार किया है, इतनी मेहनत की है। और मैं चाहता हूं कि जो स्थान आपने भोपाल में पाया है, नेक्स्ट ईयर हम पूरे ऑल इंडिया की टॉप लिस्ट में, टॉप 10 में जरूर हमारे बच्चे आएंगे। ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मेहनत को थोड़ा और बढ़ाएं। और जैसा कि स्वामी जी और परम श्रद्धेय सिद्धभाव जी का जो सपना था कि इस
देश के करप्ट लीडर्स और पॉलिटिशियंस को हम नहीं बदल सकते, पर उनके रिप्लेसमेंट्स तो हम तैयार कर सकते हैं। इसी विचार के साथ इन स्कूल्स का एस्टैब्लिशमेंट हुआ और वो रिप्लेसमेंट्स आपको बनना है, पूरे विश्व में छा जाना है। इस स्वामी जी का, आपके स्कूल का, संत नगरी का पूरे विश्व में नाम हो जाए कि हाँ, ये किस स्कूल से बच्चे आए हैं। ऐसे ब्राइटिंग स्टार्स आपको बनना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मेरा आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत धन्यवाद।